So in today's lecture, we will see virtual functions. So remember what we studied in polymorphism, where we said it has two categories. One is a runtime polymorphism, and other is a static compile time runtime polymorphism. So हमने जो कंपाइल टाइम था उसको देख लिया था. रन टाइम में हमने ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन को कैटेगराइज किया था. सो ओवरराइडिंग फंक्शन को हमने ओवरलोडिंग के साथ ही देख लिया था. अभी हम देखते हैं वर्चुअल फंक्शंस के. सो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? ये नॉर्मल फंक्शन की तरह मेंबर फंक्शन होते हैं. However, its prefix name is written with the keyword virtual. So what we do usually when we define in a class a virtual function, we override it in derived class, which means we define in derived class. So when refer to the derived class object using a pointer or a reference to the base class, you can call a virtual function. To call a virtual function, you need a pointer, object pointers. Only that way you can access the virtual function. For that object and execute the derived class version of the function. And the third important point is virtual function ensure that the correct function is called for an object regardless of the type of reference or pointer. So it doesn't matter what object you are going to use, however, its reference is important. Three more important points are that they are mainly used to achieve runtime polymorphism. As I had said earlier, the function are declared with the virtual keyword, and resolving of a function call is done at runtime. So how do we resolve it? By using a reference of class object. Now, what are certain rules that need to be remembered for every programmer, for every student? Virtual function must be member of a same class, and virtual function cannot be static member. Virtual functions are accessed by using object pointers only. Object से directly आप इसको call नहीं कर सकते. Virtual function is base class, must be defined even though it may not be used. So virtual function in base class must be defined only. So you don't need to define its body, right? Even if you use it or you don't use it, you may define it in base class only. Virtual function can be a friend of other function as well. Virtual function do not have virtual constructors. However, they have a virtual destructors. So that means a virtual constructor cannot be defined in class. However, a virtual destructor is possible to define, right? So destructor, usually we define destructor in order to destroy the object. So a virtual destructor function which destroys object can be created. However, its constructor cannot be created in a class. Let's see with the example. We saw this example in our previous lecture. We saw that we have a base class with two functions, show and print. Here with the print, we have a virtual. Virtual, it should come with the, C++ is a case sensitive. So the capitalization of V is not permitted. However, because of typing, it may have cases are typing missing or typo mistake, we can consider it. However, the crux is that the virtual. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. Okay, virtual keyword is used as a prefix with a function in base class. So we override these two show and print functions in child class, which we name it as a derived, right? So how do we access functions? Abdullah, आप क्लास के बाद रिमाइंड कराइएगा. So in main, when we come in the main, हम क्या करेंगे जी? We define the pointer, the object of base class. Then we have object our derived class. Then
the address of our derived object is stored in the pointer of base class. So this is how with the pointer of base class we can access the print and show. These two functions are called, these both functions are overridden in derived class 2. So two classes have same name functions. What do you think, what will be the output, or what should be the output? सर समझ नहीं आ रही है जो आपने virtual void print लिखा है बेस जी क्लास में, जी। तो इसका अफेक्ट क्या हो रहा है? हाँ, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी हम जब मेन की आउटपुट आपसे पूछ रहा हूँ तो इसमें क्या आएगा। अभी हमने पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसको देखते हुए अब आप बताइए कि इसकी आउटकम क्या आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो पॉइंटर है ये हमारा बेस क्लास का पॉइंटर था, और जिसको हमने एड्रेस दिया है किसका, किसका एड्रेस दिया है, derived class के ड्राइव क्लास का। ऑब्जेक्ट, राइट। सो यू आर कॉलिंग विद द एरो ऑपरेटर्स। डेफिनेटली जो हमारी क्लास होती है उसकी जो मेंबर फंक्शन है हम एरो ऑपरेटर से कॉल करते हैं। सो आप बेस क्लास पॉइंटर यूज करते हुए प्रिंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं और बेस पॉइंटर यूज करके शो फंक्शन कॉल कर रहे हैं। हमें पता है प्रिंट फंक्शन जो बेस क्लास में इट हैज अ कीवर्ड virtual. However, in base derived class, it doesn't have a virtual with its name. However, show is overridden only, right? We have overridden it only. So, what should be the output in these cases? What do you suggest? कोई बात नहीं, अंदाजा लगा लें। क्या कहते हैं, क्या आउटपुट आनी चाहिए? ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी। ये जो हमारे पास जब हमने पहला प्रिंट कॉल किया तो हमारे पास आउटकम किसकी आई? बेस बेस क्लास के जो प्रिंट फंक्शन है that executed with this call. And similarly, when we call the show, because this pointer belongs to the base class that call this function, oh sorry, show, this show function of a base class. You know why this happened? क्योंकि जहाँ पे virtual हमारी फंक्शन डिफाइन होता है तो उसकी जो बॉडी है वो हम ड्राइव्ड क्लास में ही डिफाइन करेंगे, उसको हम इनिशियलाइज या वहाँ पे कर सकते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट से उसको कॉल करेंगे तो हमें पता है कि हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा ड्राइव क्लास है वहीं पे ही डिफाइन होना चाहिए वर्चुअल को। तो यहाँ पे जो डिफाइन हुआ हुआ प्रिंट के साथ उसकी ही आउटकम आएगी, राइट। तो इसलिए प्रिंट का फंक्शन यहाँ पे आया। इन अदर केस, अगर व्हाट इफ आई रिमूव दिस वर्चुअल फंक्शन विद दिस, if I use this virtual keyword with this function, print function, what will happen? Then both of these functions should be called from the base class. So this is because of virtual keyword which makes a virtual function print that is being called from the derived class. Yes. नहीं सर, तो जब मैं virtual लिखूंगा तो, और जब मैं ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है बेस क्लास का, हम्म और सॉरी जो बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है और उससे मैंने एड्रेस जो दिया है वो ऑब्जेक्ट दिया ड्राइव क्लास का, तो जब मैं उस पॉइंटर को प्रिंट कॉल कराऊंगा तो वो बेसिकली ड्राइव क्लास का प्रिंट करेगा, और अगर virtual वर्ड नहीं लिखा होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, या तो दोनों नहीं, प्रिंट करवाने को। हाँ नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा। ये virtual फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर हमने virtual फंक्शन जैसे virtual लिखा हुआ है, अगर हमने इसको बेस क्लास में डिफाइन किया है, सिर्फ ऐसे virtual लेके आप फंक्शन लिख दें तो ये दैट शुड नॉट बी कॉल्ड, यानी कि आप इसी के बेस के ऑब्जेक्ट से इसको आप कॉल नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इस फंक्शन को ओवरराइड करना है ड्राइव्ड क्लास में, राइट। जब किस ड्राइव्ड तरह क्लास सर? ओवरराइड करना है, सेम फंक्शन आपने, ओवरराइड की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं ओवरराइड? ओवरराइडिंग कब करते हैं, कब जब करते हैं, सेम विच वन नाम इज से वेरी, यस, सेम नेम के फंक्शन बट इन different डिफरेंट classes, and क्लासेस। these classes should be parent and child, यस सर। right? अच्छा, पेरेंट पे हमारे पास प्रिंट है, वही प्रिंट हमारे यहाँ पे है, लेकिन इसके साथ हमने virtual का कीवर्ड नहीं लगाया हुआ, राइट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ये थी जो हम अभी पीछे देख रहे थे कि हमारे पास जहाँ पे virtual फंक्शन होगा उसको हम बेस क्लास की यानी कि उसके अपने ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना चाहिए, हमें इसको ओवरराइड करके इसकी डेफिनेशन यहाँ पे कर देनी चाहिए, डिफाइन यहाँ कर देना, राइट।
यानी कि उसकी इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, ड्राइव क्लास में हो रही है। अब ये जो पॉइंटर है, जो हमारा बेस पॉइंटर है, इससे जब हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि अभी बेस क्लास के पॉइंटर से वर्चुअल फंक्शन कॉल नहीं होता। तो फिर ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ड्राइव है, क्लास का। ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल कर देगा। जबकि हम सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं शो फंक्शन के साथ। शो फंक्शन हमारा ड्राइव क्लास में भी है, लेकिन चूंकि पॉइंटर हमारा बेस क्लास का है तो बेस क्लास का ही शो आना चाहिए, शो फंक्शन कॉल होना चाहिए, राइट। यस सर। अब हम इस चीज को करेक्ट करने के लिए, इसकी तस्दीक करने के लिए, पड़ताल करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए, हम इसी कोड को आप एज इट इज अगर आप C++ में एग्जीक्यूट करते हैं तो इफ यू रिमूव वर्चुअल कीवर्ड with print, what will happen, what तो will सर वो happen? फिर उस बेस कब Yeah, भेजेगा? base tag, very nice. This is the characteristics of virtual function. अब ये जो execution हो रही है, can you see कि at runtime is at runtime the things are being decided. ये कंपाइलर के पास नहीं है, कंपाइल टाइम या स्टैटिक नहीं है, राइट। सेकेंडली डायनेमिक है सर। डायनामिक है, एग्जैक्टली। दूसरा सेकंड पॉइंट इज द फंक्शन नेम्स आर सेम but characteristics are getting changed, which mean we are doing polymorphism. So this is one of the type of dynamic polymorphism, runtime polymorphism, late binding polymorphism. So these are different names, right? Clear हो गया? यस यस सर। अच्छा, अब मैं एक और, there is one other characteristics of a virtual function. What if we, in a base class, what if we define virtual void print and if I initialize it with 0, right? Define किया, 0 लगा दिया, और इसको, अब क्या होता, अब इसकी तो बॉडी जो नीचे वाली बॉडी है ये तो डिफाइन ही नहीं करनी पड़ती ना, क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, राइट। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, नहीं ये सर क्या किया हमने उसको, ये समझ नहीं आई सर। हाँ मैंने एज इट इज वही फंक्शन है, void जी। virtual void print इक्वल टू 0, मैंने फंक्शन को असाइन कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। अब वर्चुअल फंक्शन है, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इन दिस केस जी व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? सर, वर्चुअल फंक्शन को जीरो कर दिया, एरर ही आना चाहिए। इनिशियलाइज इसको कर दिया, नो। हमें पता है इसकी रिटर्न टाइप होती है ना फंक्शंस की, राइट। सो बिल्कुल। इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करेंगे बेस क्लास में। तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन। व्हाट डू वी कॉल इट? प्योर वर्चुअल फंक्शन। Okay. What is the beauty? What is the characteristics of pure virtual function? This makes this base class as abstract class. तो Clear? एब्स्ट्रैक्ट क्लास से सर क्या होगा? हाँ, अब जो abstract class है उसकी कुछ characteristics होती हैं। You know, जब हम abstract कहते हैं किसी चीज को, abstract का मीनिंग क्या होता है? उर्दू में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बच्चे आप मौजूद हैं? जी सर। तो abstract को उर्दू में क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट को सर उर्दू में क्या कहेंगे सर? हाँ, वो जो हिडन होती हैं चीजें। नहीं hidden नहीं, मतलब कि जैसे समरी होती है, कह सकते हैं ना, जी। तो काइंड ऑफ समरी, राइट। लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, खुलासा कह लें सर। खुलासा उर्दू में कहेंगे, एग्जैक्टली, हाँ, राइट। जी। तो वेयर देयर इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, दैट क्लास बिकम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो ऑल द फंक्शन इन इट, आप उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन तो कर सकते हैं, ये फंक्शन नेम है, ये फंक्शन नेम है, बट उसकी बॉडी को नहीं डिफाइन कर सकते, उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते फंक्शन को, राइट। तो उसको हम उसको इनिशियलाइज कहाँ पे करेंगे, ड्राइव्ड क्लासेस में जाके। सो हम एक ऐसी क्लास बना लेते हैं जिसके अंदर सारे फंक्शंस मौजूद हों, या एक ही फंक्शन मौजूद हो और मल्टीपल सब क्लासेस में हम उसको कॉल कर सकें। मिसाल के तौर पे ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये नीचे उसकी फर्दर जो चाइल्ड क्लासें हैं या ड्राइव क्लासें हैं वो बन रही हैं।
ये इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ कि प्योर वर्चुअल फंक्शन से इफेक्ट क्या होता है। तो एक फंक्शन जो कि पेरेंट क्लास में है, इसमें that is being called by this, which is also being called by this child, this is also being called by this child. So in that case, अब हर एक जो चाइल्ड एक ही फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो वो अपने तौर पे उसकी बॉडी डिफाइन करेगा। ये अपने तौर पे डिफाइन करेगा, ये अपने तौर पे, ये अपने तौर, बट द फंक्शन नेम रिमेन सेम, राइट? क्लियर? So in this case, this class should be abstract class because the body of functions, our function is well defined in its body. However, we are initializing only in abstract class. इसमें हम इसको initialize कर रहे हैं या define कर रहे हैं। Initialize हम किस में कर रहे हैं? Derived classes में कर रहे हैं। That's a one way. And the other way is that you define all of the functions in this particular class, and some child class may be required here, some child of child may require from here, something like this. So तो आप एक ही जो क्लास है उसमें ये डिफाइन कर लेते हैं, लेटर ऑन उसके जो चिल्ड्रन है उसमें इसको कॉल करते रहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए यू नीड प्योर वर्चुअल फंक्शन, इन अदर वर्ड्स। आर वी क्लियर सो फार? डिटेल में हम इसको आगे देखते हैं। आर वी क्लियर? Yes, sir. Okay, so a class having pure virtual function is called abstract class. It cannot be instantiated. However, pointer and reference of abstract class can be created. इसका मतलब है जब हमारी बेस abstract class cannot have object, हम उसका ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। तो जो फंक्शन हमारे बेस क्लास में होंगे तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ। So define those functions in derived class. Use derived class object to access the abstract class functions. So abstract class can have normal function members and variables along with. That's another characteristic. So abstract class not only have specific functions but also have normal member functions too. अब जब उसके अंदर एक बेस क्लास में डिफरेंट फंक्शंस, एग्जिस्टिंग मेंबर फंक्शन, यू कैन मेक a new function, existing function, as well as variables. So if we cannot define or initialize base class object, then how can we access these functions? Using derived class objects, right? So when we will inherit base class into derived class, using a derived class object, we can access these functions using pointers. Next, abstract class are mainly used for upcasting so that a derived class can use use its interface, right? So वही बात है जो मैंने कही कि आपने abstract class में क्या करना है, all of the function defined there, then initialize in derived classes and use according to your own demands. So इसको हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे आगे। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। So पहले हमने देखी कि what pure function has effect on a class, that makes abstract class. And then we see the characteristics of abstract class. Now we see pure virtual function and its characteristics. So sometimes implementation of all function cannot be provided in base class because we don't know the implementation, such as class is called abstract class. So we need an abstract class. For that we use pure virtual function. So that's the reason we invented or defined pure virtual function. A pure virtual function or abstract function, it has both names. In C++ is a virtual function for which we don't have actually implementation. When we don't implement it, actually it helps to make the class abstract, only declare it. So when you declare it, similarly in abstract class, you can declare other functions too in abstract class and can be called in base class, in a derived class. Using a derived class object, you can utilize it in your derived classes wherever you want. Then pure function has no definition. These are three characteristics that belong to virtual functions. Some facts which I already have discussed in previous slides, as well as let's revise it too here if those points come here. A class is abstract if it has at least one pure virtual function. We can have pointers and reference of abstract class type. So another characteristic that if we do not override the pure virtual function in type class,
ड्राइव्ड क्लास भी क्या बन जाएगी फिर? abstract बन जाएगी. When derived class become abstract, that means you cannot also use the object of that derived class to access the member function or the member of that class. So you have to override it, otherwise that derived class becomes automatically what it becomes? Abstract class. So abstract in effect of a virtual function in parent class has effect on its children's too. Functions are not overridden. So abstract class cannot be instantiated. उसके हम object नहीं बना सकते हैं. So this is what it states. So what's wrong with this? यहाँ पे क्या mistake है, क्या problem है? कोई बता सकता है? Anybody can identify? abstract class का object बनाया हुआ We have a yes, very nice, right? So हमने भी कहा उसको initiate नहीं कर सकते, instantiate नहीं कर सकते, तो we have instantiated here. we हमने इसका object बनाया हुआ है. So we have a base class with the pure virtual function that is show. We have a drive class here, so we are overriding the show function. Now we have created the object of base class, which is impossible. Okay. In this example, we try to understand कि usually हम कहाँ base class सर ये जो आपने ये ऑब्जेक्ट कह रहे हो तो इम्पॉसिबल है सर, इसकी समझ नहीं आई, इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. इसकी समझ नहीं आई. यस सर, ये हम क्यों नहीं कर सकते इधर सब बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है सर, ये ओवरऑल होता है या इसमें वर्चुअल फंक्शन में ही होता है? Some characteristics of using different things. For example, as I said कि आप एक खुलासा लिखते हैं, खुलासे में डिटेल तो नहीं होती ना, राइट? सो जो एब्स्ट्रैक्ट हमने एक ऐसी क्लास बनानी है जिसमें फंक्शंस मौजूद हो लेकिन वो डिफाइन ना हो, उसकी बॉडी ना हो, राइट? यानी फंक्शन डिक्लेयर हुए हो, इनिशियलाइज ना हुए हो फंक्शंस. सो हम जो एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसकी सब क्लासें हैं, उनमें हम ये वाले फंक्शंस यूज करना चाह रहे हैं, तो हम डिफाइन भी उसको वहीं पे करेंगे चाइल्ड क्लास में, लेकिन उनकी एक लिस्ट बना के हमने रख ली. अब ऐसी क्लास जिसके अंदर हमने खुलासा रखा है, चीजें रखी, वो एक्सप्लेनेशन तो नहीं बन सकती ना किसी भी चीज की. उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है बट दोज कैन नॉट बी एक्सप्लेनेशंस. जैसे अभी मैं यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर मैं इसको मजीद छोटे पॉइंट करके लिखूं, फॉर एग्जांपल मैंने अच्छा यहाँ पे ये लिखा है, सो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है. लाइक वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी मेंबर ऑफ अ सेम क्लास. सो व्हाट इट इज देन. सो ये एक्सप्लेनेशन नहीं बन सकती बट हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? सो हमने एक ऐसी क्लास बनानी है जिसमें सारे फंक्शंस मौजूद हो, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे उसके अंदर वो सारे फंक्शंस कॉल करें. मिसाल के तौर पे if you make a class where you have functions of triangle, circle, line, and something like this. So if somebody asks you, okay, draw a human structure using these graphic functions, फिर आप क्या करेंगे? हमें पता है कि for example, if I say, if I'm close to human structure, please let me know. क्या ख्याल है? Am I close? इसको देख के लगता है कि Yes, sir. so what you need a circle, and then you need lines, and then you need lines at different angles, right? So आप इन्हीं functions को कॉल करना चाहते हैं अपनी बॉडी में. So आप एक abstract class बनाए, उसके अंदर ये सारे function क्या कर दें? डिक्लेयर कर दें and define them in derived class, right? Whenever you will call the line will come this. If you call the line with some angle, it should become like this, right? So इसका मतलब है abstract class का ऑब्जेक्ट बनाने का कोई मकसद नहीं है, कोई यूज नहीं है, लेकिन जो हमारी abstract क्लास है उसके फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि abstract क्लास है तो आप उसके जो सब चाइल्ड्स है, आप वहां पे इन जो फंक्शंस की लिस्ट यहाँ पे है
उनको आप इसके चिल्ड्रन चाइल्ड जो है या ड्राइव क्लासेस है वहां पे डिफाइन करना चाहते हैं। तो इन फंक्शंस जो यहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं डिफाइन यहाँ कर दें और इनिशियलाइज यहाँ कर दें, सॉरी डिक्लेयर यहाँ कर दें बेस क्लास में जो कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ड्राइव क्लास में आप क्या कर दें, उनको डिफाइन कर दें। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C++, जिसमें हमारे पास इनहेरिटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हुए द डेवलपमेंट इज मेड इजी। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर पुट देयर। सो इस केस में जब मैंने ये कहा कि हम जो बेस क्लास है उसको तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, हाँ उसके फंक्शन जो है वो ड्राइव क्लास में इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हेन वी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट। आप इसको चला के देखेंगे, आपने लैब में प्रैक्टिस करके देखिएगा, तो जिसमें आप प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, इट शुड जनरेट एन एरर। राइट, क्लियर? अभी जो मैंने आपको सर्कल की एग्जांपल दी या ह्यूमन फेस की एग्जांपल दी, सिमिलरली व्हाट वी डू कि अगर आपके पास मल्टीपल, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है, सर्कल है, हर एक में क्या चाहिए होगा आपको, एक तरह का फंक्शन चाहिए, दैट इज गेट एरिया। हाउएवर जब गेट एरिया करेंगे तो सर्कल के लिए क्या रूल है, पाई आर स्क्वायर, राइट। अगर मैं एक और यहाँ पे एक इसी तरह का एक फंक्शन बना लूं जिसमें मैं लिखता हूँ जी क्लास रेक्टेंगल, सपोज रेक्टेंगल, और ये है जी हमारा शेप जो पेरेंट क्लास है उसका ड्राइव क्लास है shape, right? So when I will define get area for this rectangle, उसमें क्या होगा, length multiplied by width, ऐसे होगी ना, that will be area of rectangle. So Yes, sir. get area function for this rectangle, its body will be different, how a function name remain same. So this is another example कि आपने जो पेरेंट क्लास है वहां पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मेन में जाएंगे तो आपने क्या किया, सर्कल जो इसका ड्राइव क्लास है, ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है C1 कॉल किया, देन व्हेन यू कॉल C1 डॉट गेट एरिया